स्वागत करते हैं आप सभी का। हमें जो इस समय लाइव देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय पी चिदम्बरम जी, सांसद हैं राज्यसभा से, और साथ में है शक्ति सिंह गोहिल, ये गुजरात से विपक्ष के नेता, पूर्व विपक्ष के नेता और सांसद है राज्यसभा में। इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। बारी बारी से वो स्टेटमेंट मेक करेंगे, पहले चिदम्बरम जी, उसके बाद शक्ति भाई। सर, ओवर टू यू चिदम्बरम सर। Thank you. Good afternoon, friends. My colleague Shri Shakti Singh Gohil and I are here to meet you today on a matter of grave concern. We are shocked, and I'm sure you will be shocked too when you come to know the facts. We have an opening statement, and let me read the opening statement in English. Copies are being distributed both in English and Hindi. And then my colleague Shakti will make a brief statement in Hindi. We will then take questions. On 14th May, Divya Bhaskar, a Gujarati language newspaper, published a news story that sent shock waves throughout Gujarat and the country. The thrust of the story was that during the period March 1 to May 10 of this year, that is 71 days, Gujarat issued about 1,23,000 death certificates, as against about 58,000 death certificates issued during the same period last year, that is 2020. The increase was an alarming number of about 65,000 death certificates. The increase cannot be explained. Let me repeat, this increase cannot be explained as a natural annual increase in the number of deaths. It can only be attributed to a pandemic or any other natural disaster. We have independently verified the two numbers referred to above for the period of 71 days. We have collected the numbers from 33 districts, including the cities of Gujarat. The sum of the number of death certificates nearly tallies with the numbers published by Divya Bhaskar. The numbers are 1,23,873 in 2021 versus 58,068 in 2020. During the period March 1, 2021 to May 10, 2021, the government of Gujarat has officially admitted to only 4,218 COVID-related deaths. The difference between the increase in the number of death certificates, that is 65,805, and the official COVID-related deaths, 4,218, must be explained. It cannot be explained as natural annual increase or due to other causes. We have a strong suspicion that the bulk of the increased number of deaths is due to COVID, and the state government is suppressing the true number of COVID-related deaths. Our suspicions are confirmed by the fact that hundreds of unidentified bodies have been found floating on the river Ganga, and nearly 2,000 unidentified bodies have been found buried on the sands along the river Ganga. We have a strong suspicion that the government of India, in conjunction with some state governments, is suppressing the true numbers of new infections and COVID-related deaths. If our suspicions are true, this is a grave misdeed, apart from being a national shame and a national tragedy. The government of India and the government of Gujarat owe an explanation to the people of India. The Congress Party, we demand answers and an explanation. Shakti?
यस सर, थैंक यू सर। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे सीनियर साथी चिदम्बरम साहब का, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण इश्यू को आपके सामने इंग्लिश में रखा है। पत्रकार साथियों, प्रणव जी, प्रशांत जी और हमारे मीडिया की टीम के साथियों, हमारे वरिष्ठ नेता मेरे सीनियर कलीग चिदम्बरम साहब ने जो बातें रखी हैं, एक गुजराती होने के नाते बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में गुजरात का एक मॉडल बना, गांधी मॉडल, और पूरी दुनिया में गुजरात की एक अपनी प्रतिष्ठा बनी। सत्य और अहिंसा का रास्ता पूरी दुनिया को अगर किसी ने दिखाया, एक गुजराती ने, महात्मा गांधी जी ने दिखाया। और बड़ी शर्म के साथ मैं कहता हूं कि आज झूठ और फरेब भी एक मुखौटा पहना के असली सीरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, इस तरह की बातें वही मेरे गुजरात से हो रही है जिससे हम बदनाम हो रहे हैं। गुजरातियों के सुरक्षा, गुजरातियों की चिंता को लेके कांग्रेस पार्टी ने इस एक बड़े गंभीर मसले को यहां उठाने का निश्चय किया। मैं धन्यवाद करता हूं गुजरात के उन अखबार के मालिकों का, उन अखबार के तंत्रियों का, उन अखबार के पत्रकारों का, जो बहुत सारे प्रेशर और ऑड्स के बावजूद सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। कुछ जरूर इसमें गलतियां और भक्ति भी करते हैं, कुछ की कंपल्शन भी होता है, पर आजकल सच को सामने के लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उन मीडिया के साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो 2020 में मार्च, अप्रैल और मई के पहले 10 दिन, माने फ्रॉम 1 मई टू 10 मई, इसके फिगर एक लीडिंग वर्नाक्यूलर जर्नलिस्ट ने और उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके 33 डिस्ट्रिक्ट्स है गुजरात में, उन 33 डिस्ट्रिक्ट्स और 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वहां से जांच पड़ताल की और 2020 के मार्च, अप्रैल और मई के 10 दिन मिला के 71 डेज, 71 दिन में 2020 में कितने डेथ हुए थे और 2021 में कितने डेथ हुए, आपको ताज्जुब होगा। 50% से ज्यादा इन 71 दिन में जो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हुए, और डेथ सर्टिफिकेट किसी की डिग्री की तरह फर्जी नहीं होता है, डेथ सर्टिफिकेट तो सही होता है। उस डेथ सर्टिफिकेट्स को इश्यू होने में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी हो। इन सिर्फ 71 डेज में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हुए। माने अगर डेथ सर्टिफिकेट के लिए नहीं अप्लाई किया, जिसने इत्तला नहीं दी, कोई गरीब लोग ऐसे भी होंगे, उसको बात कर दीजिए, पर जिन्होंने जाके लिखवाया और सर्टिफिकेट मांगा वो 1,23,000 और जो पुराने एक साल माने 2020 के मार्च, अप्रैल और मई से 50% से ज्यादा, और सरकार कहती है कि कोरोना से डेथ सिर्फ 4,218 हुई है, 4,218 ड्यूरिंग दिस 71 डेज। मैंने कुछ डॉक्टर से भी बात की, मैं खुद इस राजनीति में लंबा अरसा मेरा यहाँ पे हुआ है, कुछ अधिकारियों के साथ विधानसभा में विधायक, पीएसी चेयरमैन या मंत्री रहते हुए नजदीकी से काम किया है, उनसे पूछा है, कुछ कॉरपोरेशंस में अधिकारियों से बात की है, कुछ म्यूनिसिपैलिटीज में हमारे म्यूनिसिपैलिटी के अफसर्स रहते हैं, उनसे बात की है।
कुछ लोगों ने मुझे मोबाइल पे उनके पिक लेके भी भेजे हैं डेथ रजिस्टर्स के। और जो दिव्य भास्कर की स्टोरी की थी उसकी जांच पड़ताल के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन 71 डेज में जो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं वो एक साल में 50% से ज्यादा हुए हैं। और ये सारी मौतें क्यों हुई है, बहुत लोगों से, डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से बात करने के बाद मैं कन्विंस हूं कि ये जो मृत्यु हुई है उसमें से ज्यादा बढ़ोतरी का कारण कोरोना वायरस है। अगर मैं गलत हूं तो सरकार एक व्हाइट पेपर निकाले, सरकार खुद इस बात की जांच करे, न्यायिक जांच। मैं कल रात को भावनगर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा गांव लिमड़ा में रुका था, जहां पे पूरे साल में 4 से 5 मृत्यु होती है, आखिरी 2 महीने और 10 दिन में 38 डेथ्स हुई है। और जहां जिसको भी मैंने पूछा क्यों मृत्यु हुई थी कोरोना की वजह से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात के मुख्यमंत्री को यह सवाल किया गया कि आप ये फिगर्स दिखा रहे हो और जो एम्बुलेंसेस जो कोरोना के प्रोटोकॉल में लिपटी हुई बॉडीज आ रही है, एक साथ डेड बॉडीज को जलाना पड़ रहा है, और आप कोरोना के मृत्यु की से क्यों नहीं कहते हो। तो जैसे कि हमारे यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री जी कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे बोलते हैं वो आप सब अब जानते हो। तो उन्होंने एक लिफाफों थोड़ी सी इधर उधर की थी कि कोरोना पॉजिटिव हो गया और उसके बाद हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया तो वो कोरोना का डेथ नहीं। अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया और बाद में उसकी किडनी फेल हो गई तो वो कोरोना से मृत्यु नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कोरोना जब होता है कहीं ना कहीं ऑर्गन्स को डैमेज कर लेता है। पूरी दुनिया ये जानती है कि कुछ दिनों के बाद कोरोना तो नेगेटिव हो जाता है, पर क्योंकि कोरोना आया था उसने जो डैमेज किया जिस ऑर्गन को, मृत्यु होती है। अगर कोरोना नहीं आया होता तो ना उसको हार्ट अटैक होता, ना किडनी फेल होती, या ना लिवर फेल होता, ना ब्रेन स्ट्रोक आता, ना लंग्स फेल होते। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि सरकार मरते वक्त अगर कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो कोरोना की डेथ नहीं है। एक फरेब और झूठ है। मैं देश के प्रधानमंत्री जो गुजरात से आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनसे कि हिम्मत दिखाए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी के जरिए ये जो मृत्यु हुए हैं और डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं और ये जो गफला चल रहा है उसकी सच्चाई की जांच हो। जब तक आप सच का सामना नहीं करोगे उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आज गुजरात में लोग बहुत बुरी तरह से मर रहे हैं, ना ऑक्सीजन है, ना आईसीयू बेड है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शंस है, टॉसिलजिम्बा तो मिलता ही नहीं है। और अभी अभी जो फंगल इन्फेक्शन पोस्ट कोरोना शुरू हुआ है उसके लिए इंजेक्शंस चाहिए, वो इंजेक्शंस नहीं मिलते हैं। सरकार दावा करती है और कहती है अब हम उसको टैबलेट्स दे देंगे। ये मजाक है। लोग जिस तरह से बुरे हाल में हैं, मैं पत्रकार साथियों को भी जिन्होंने ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है उनको धन्यवाद करता हूं, पर सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ऐसा माहौल बना है वहां आप भी अपना मजहब निभाइए, सच्चाई सामने लाइए और तभी लोगों के लिए सरकार जागेगी। कुंभकर्ण की निंद्रा में ये सोए हुए हैं, इनको जगाने की अब जरूरत है। धन्यवाद। प्रणव भाई। धन्यवाद शक्ति भाई। थैंक यू एवरीवन।